لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہ رہی ہوں کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ہے. آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دورہ قرآن سارے اپنے لو ونس کو بھیج دیں. جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک آیا کو اس کے دل میں اتر جائے، اس کو لگے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے، دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال بھی بڑھتے رہیں گے. اور جو کسی کو کوئی برائی کی تلقین کرتا ہے یا برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس نے برائی کی دعوت دی، جس نے برائی کا بات کسی کو بتائی تو اس کو بھی ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر ہی گناہ ملے گا. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے نیکیوں کے ساتھ، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں. تو آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آیت نمبر 1، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اور اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا ہمیں میسج مل رہا ہے کہ نہیں پسند فرماتا اللہ اعلانیہ بری بات کا کہا جانا ماں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. یہاں پہ ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو کھلے عام اشتہار نہ بناؤ. اگر کوئی برائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کو دبا دو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوسائٹی پلیوٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن آج کل آپ دیکھیں جب ہم میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان گھروں میں وہ بچیاں جو کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں کے اندر، وہ کیسی کیسی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں. کیونکہ اللہ برائی کیا ہے ہم نے پڑھا نا پہلے، اور جو میں نے ڈیٹیل لیکچرز جو میرے سنڈے کو میری کلاس ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے. تو ہم کھلے عام جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ جی یہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، اس کی ماں تو کچھ کہتی نہیں ہے، پھر میری امی ایسے کیوں کہتی ہیں. دیکھیں یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچیوں کو آپ کسی بات سے روکتے ہیں تو ان کی جاننے والے اگر ان کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں ایسی آزادی ہے کام کرنے کی جو بری باتوں میں آتا ہے، تو ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اجازت ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو چھپا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اشتہار بنانے کی. الا من ظلم، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس سے نجات دی جا سکے. اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سسرال میں اگر ظلم ہو رہا ہے، خامد ظلم کر رہا ہے، بیٹا زبان بند رکھنا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے سامنے میں آیت رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ظلم ہوا ہے نا تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟
ظلم یہی تو ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیں، کسی کی حق تلفی کر دیں، کسی کے وراثت میں حق مار دیں، کسی کو کوئی بھی لیول پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنی ہی بات جتنی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بتا دے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ظلم کسی کے اوپر آپ کریں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ آسمان سے، اللہ کے عرش سے آتی ہے اس کی دعا قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ظالم جو ہے نا اس کے لیے بہت بہت بڑی اس کے لیے سزا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا تو سو جاتا ہے، لیکن ظالم کی جو آہیں ہیں وہ ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا نا، دیکھو تمہیں اللہ پوچھے گا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم کی بددعا تو ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ بعض لوگ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مظلوم بنا دیتے ہیں، تو ایسی ان کے لیے بھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے نا اس کے لیے یہ ڈرنے کی بات ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی دعا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی یا اس کو چھپاؤ گے یا درگزر کرو گے برائی کو تو یقیناً اللہ ہے معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی تو یا اس کو چھپاؤ گے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے کرنے سے کسی دوسرے کو ہمت ملے گی اور وہ بھی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی اجازت ہے، اور اگر تم چھپا کے کرتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو چھپا کے کوئی صدقات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو فرمائی کہ اگر تم درگزر کرو گے برائی سے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے، کہ اگر پھر تم کسی کو معاف ہی کر دو، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں اتنا جگرا ہے، اتنی ہمت ہے، تو اگر تم معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت صاحب قدرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی بات ہم وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین، میں نے تیرے بندے کو اس وقت معاف کیا تھا جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی، تو آج آپ ہمیں معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس بات کی قدر کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفریق کرے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کی، اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ نکال لیں اس کے درمیان کوئی راہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اتنا فتنہ ایک قسم کا آ گیا کہ لوگ سنت سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ جو تفرقہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو سنت کو نہیں مانتے، جو حدیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ پوچھے کہ نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نا جو ہم نے قرآن میں پڑھا، لیکن ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے تمام ارکان آپ کو کس نے سکھائے ہیں؟ اور اس طرح سے تھاؤزنڈ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کئی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم کافر ہو، تو کیا پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آپ سے دیکھیے کہ وہ کافروں والے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق عطا کرے کہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں ان میں سے، یہی لوگ ہیں ان قریب عطا فرمائے گا وہ انہیں ان کا اجر، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ تم ان پر کتاب آسمان سے، تو یقیناً یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اس سے،
اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرأت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा पर हर अहले किताब ईमान लाएंगे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे। बस सबब जुल्म के इन लोगों के जो यहूदी थे, हराम कर दी थी हमने उन पर पाकीज़ा चीजें जो हलाल थी उनके लिए, और इस सबब से कि वो रोकते थे अल्लाह के रास्ते से। तो हुआ भी ये कि जो चीजें इनकी शरीयत में हराम थी इनके गुनाहों के सबब, या फिर उन्होंने खुद ही हराम कर ली थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको हलाल किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से, तो अब ये कहते थे कि शरीयत तो वही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले उसको हराम किया अब हलाल किया, ये कैसी बात है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि उनके गुनाहों के सबब उन पे हराम थी, लेकिन वो हमारी उम्मत पे, मुसलमानों पे वो हराम नहीं है। जैसे कि उनका गोश्त का हमने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया था, लेकिन वो हमारे लिए हलाल है। और उनके लेने के सूद के जबकि मना किया गया था उनको इससे, और उनके खा जाने से अमवाल लोगों के नाहक तरीके से, और तैयार कर रखी है हमने उनके लिए जो काफिर हैं उनमें से अजाब दर्दनाक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लेकिन जो पुख्ता लोग हैं इल्म में इनमें से, और जो मोमिन है वो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और कायम करने वाले हैं नमाज के, और देने वाले हैं ज़कात के, और ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर, तो यही लोग अनकरीब जिन्हें देंगे हम अजरे अजीम। और अब आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन वही भेजी हमने तुम्हारी तरफ जिस तरह वही भेजी थी हमने नूह की तरफ और पैगंबरों पर इसके बाद, और वही भेजी थी हमने इब्राहिम की तरफ और इस्माइल और इसहाक और यकूब और औलाद यकूब और ईसा और अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान पर, और अनायत की थी हमने दाऊद को ज़बूर। और वो रसूल हैं कि बयान कर चुके हम जिनके हालात तुमसे इससे कब, और वो रसूल हैं कि नहीं बयान किए जिनके हालात हमने तुमसे, और कलाम फरमाया अल्लाह ने मूसा से एक बाहमी कलाम। सब रसूल खुशखबरियां सुनाने वाले और डराने वाले हैं ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत रसूलों के आने के बाद, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दौर में रसूलों को भेजा, किताबें भेजी ताकि लोगों को रहनुमाई मिले और ताकि लोग हदायत पर चल सके। क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था तो क्या फरमाया था कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो इस पे अमल करेगा वो सीधी राह पा जाएगा। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा गया ताकि लोग सीधी राह अपना लें। और आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लेकिन अल्लाह गवाही देता है इस पर जो नाजिल किया गया उसने तुम पर के नाजिल किया गया है उसको अपने इल्म से, और फरिश्ते गवाही देते हैं और काफी है वो अल्लाह पर बतौर गवाह। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, बेशक भटक कर जा पड़े वो गुमराही में दूर की। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म करते रहे, नहीं है अल्लाह कि माफ कर दे उनको और ना ही वो दिखाएगा उनको सीधा रास्ता सवाए रास्ते के जहन्नम के, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और है ये अल्लाह के लिए बहुत आसान। देखिए हम बार बार पढ़ते हैं ना कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात की हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं उसकी पैरवी नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितना गुस्सा और गजब हम पढ़ रहे हैं, तो फिर भी हमें डर नहीं लगता। हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें सुनते हैं ना जब लोगों से, तो कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहमान है, रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना, अब कुछ नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है, ये शैतान है जो हमको जानबूझ के ऐसी चीजें हमारे दिल में डालता है। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर इतने रहमान और रहीम नहीं होते तो आज हम दुनिया में जितनी गुनाह कर रहे हैं, जितनी गलतियां करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में उसकी इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दिखा देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौका देते हैं कि शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। अब ये देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए लोगो यकीनन आ गया है तुम्हारे पास रसूल हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, तो ईमान लाओ, बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हम ये भी पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो कुछ आसमान में है, जो कुछ उसके दरमियान में, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मसरूफ है। ए बंदे तू अपनी औकात तो देख के तुझे क्या हो गया, तू किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म नहीं मानता, और इतनी आसानी के साथ तू ये सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी नहीं कहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं
کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو، یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے، عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے جو غلوف کیے۔ تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا ہے، سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق، اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح اس کی طرف سے۔ تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں، اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا تو انقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کے سب کو۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو دے گا وہ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر، اور مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ اور بس وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا، تو دے گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل۔ کون سی دلیل آ چکی ہے؟ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رہے مضبوطی سے اس کو، تو انقریب داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی جانب سے اور فضل میں، اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ۔ اب آیت نمبر 176 میں ہم کلالہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے، کیونکہ ہم پہلے ڈیٹیل میں وراثت کے قانون پڑھ چکے، اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس کے بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور وہ بھائی اس مرنے والی بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد۔ پھر اگر ہو اس مرنے والے بھائی کی دو بہنیں، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ان میں سے جو اس بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور اگر ہو بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے برابر ہے حصہ 2 عورتوں کے۔ بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھٹکتے پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے وراثت کے جتنے بھی رولز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچویشنز فرق ہوتی ہیں، تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جتنی جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ اتنی محنت سے پیسہ جمع کرتے ہیں اولاد کی خاطر نا، اور وہ اولاد جو ماں باپ کی جان ہوتی ہے، ان کے مرنے کے بعد اسی جو پیسہ وہ اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں نا، اسی پیسے کی وجہ سے سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں دل کھٹے ہو جاتے ہیں،
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी माँ बाप ये चीज सोच लें कि जो चीज वो छोड़ के जा रहे हैं वो चीज उनके लिए कितना फितना बन जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप कभी ऐसा ना करे। और यही बात कि छोड़ेंगे माल तो डेफिनेटली, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बैना बता दिया कि कैसे उसकी डिवीजन होगी, किसका माल किसको कितना मिलेगा, लेकिन जिगरा भी तो होना चाहिए ना वो सारा करने के लिए। और फिर उसकी इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। आप देखें, अगर किसी के विरासत में से अब छोटा सा माल भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन का हिस्सा था, आपने जबरदस्ती धोखे से ले लिया, वो माल जो है वो आग बन के पेटों में जाएगा। और वो कैसे हलाल, अब देखिए हराम माल का एक लुकमा पेट में चला जाए तो 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तो कैसे वो माल जो खा रहा होता है वो ना सिर्फ खुद खाता है, अपनी औलाद, अपने जिसको भी खिलाता है, कैसी आग भरता है वो पेटों में। और ये चीज कोई समझता नहीं है इतनी आसानी से। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सूरत हमने खत्म की है आज इंशाल्लाह, तो इसके जितने भी अहकामात हैं हम उसको भी समझने के काबिल हो जाए। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हमें हक दिखा दे हम ताकि, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक भी अता करके हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन, ताकि हम उससे इज्तनाब कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं सूरत अल माइदा और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब किसको कहा जा रहा है ना, मुझे और आपको कहा जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकार रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि जो ईमान लाए हो पूरा करो मुआहदों को। कौन से अहदों को पूरा करो? अब आप जरा देखिए कि हमने कौन से अहद पूरे करने हैं। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अहद किया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अहद है। और फिर सबसे बड़ा अहद उसके बाद जो हम एक और अहद करते हैं जो निकाह का अहद होता है। जब हम अपने निकाह के रिश्ते में बनते हैं, ये इतना बड़ा अहद होता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को आगे तैयार करना होता है। अगर मियाँ बीवी में हारमनी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उस घर से जो बच्चे बड़े होंगे ना, वो सोसाइटी के लिए एक खूबसूरत फूल की तरह बड़े होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करवा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो पूरा करो अपने मुआहदों को। हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए चराने वाले चौपाए, मवेशी बजस इनके जो पढ़ चुके पहले से, हम तुम्हें सुना चुके जो भी हमने पढ़ चुके पहले से कि क्या हलाल है। ना हलाल जानना शिकार को जबकि तुम हो एहराम में, बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो वो चाहता है। अब देखिए कि एहराम की हालत में हमारी आजमाइश क्या होती है कि जो हलाल चीजें होती हैं कुछ, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त हराम कर देते हैं। जस्ट टू नो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानना चाहते हैं कि मेरा बंदा उस वक्त मेरे हुक्म क्यों मानता है कि नहीं मानता। और जब हम उस वक्त अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में पक्के हो जाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं उम्रा या हज से, तो यही प्रैक्टिस हमारी होती है कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो अहकामात जिस पे अल्लाह ने मना किया है, अब हमने वो नहीं करने हैं। और ए लोगों जो ईमान लाए हो, बेहुरमती मत करो अल्लाह की निशानियों की, और ना हुर्मत वाले महीनों की, और ना कुर्बानी के जानवर की, और ना उनके पटे पड़े हुए हो जिनके गलों में, और ना उनकी जो जा रहे हों बैतुल हरम की तरफ तलबगार बनते हुए फजल के अपने रब की और उसकी खुशनुदी की। तो यहाँ पे उन जानवरों के बारे में है कि पट्टे डाले हुए वो थे कि जिनकी एक निशानी होती थी कि ये उन्होंने कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। उस जमाने में ये रवाज होता था कि लोग अपने कुर्बानी के जानवर साथ ले जाते थे, और एक निशानी के तौर पे होता था कि ये वाले जानवर जो हैं ये हम साथ लेके जा रहे हैं। और उनके बारे में है कि उनकी तुम बेहुरमती मत करो। जब एहराम उतार दो तो फिर शिकार करो, और ना आमादा करे तुम्हें दुश्मनी उन लोगों की कि उन्होंने रोका था तुमको मस्जिद हराम से इस बात पर कि तुम ज्यादती करने लगो। और तावन करो नेकी में और परहेजगारी में, और मत तावन करो गुनाह में और जुल्म में, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हराम किया गया तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और गोश्त सुअर का, और वो जिसको पुकारा गया हो गैर अल्लाह का नाम जिस पर, और वो जो गला घुट
कर मर जाए, और वो जो चोट लग कर मर जाए, और वो जो गिर कर मर जाए, और वो जो सींग लग कर मर जाए, और वो जिसको फाड़ खाए दरिंदे, मगर वो जिसको मरने से पहले ज़बह कर लिया तुमने, और वो जो ज़बह किया गया हो आस्ताने पर, और ये कि किस्मत मालूम करो तुम जुबे के तीरों से, ये सब गुनाह के काम है। आज ना उम्मीद हो गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से, तो मत डरो इनसे और मुझे से डरते रहो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बताया कि कौन कौन से जानवर जो हैं किस हालत में वो हराम होंगे, खाना उनका मना किया गया। लेकिन उससे पहले अगर उनको चोट जब लगी है, वो गिरे हैं, अभी उनके अंदर जान है, तो उस वक्त अगर तुम ज़बह कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए हलाल है। और अब आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत खुशखबरी दी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और तमाम कर दी तुम पर अपनी नेमत। व रदीतु लकुमुल इस्लाम, और पसंद किया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को। बस जो शख्स नाचार हो जाए भूख से कि ना माइल हो गुनाह पर, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर इस हालत में है कि उसके पास खाने की कोई चीज नहीं है, और यहाँ तक हालत हो गई कि वो मरने के करीब हो गया, तो उस वक्त जो हराम चीज है वो उस वक्त वो खा सकता है, उस पर उस वक्त कोई गुनाह नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं कि अपने शौक से खा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बच जाए, वो इतना से सिर्फ खाता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। पूछते हैं वो तुमसे कि कौन सी चीजें हलाल की हैं, उनके लिए कह दो कि हलाल की हैं तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें, और जिनको सुधार रखा है तुमने शिकारी जानवरों में से शिकार पर दौड़ाने को, कि सिखाते हो तुम उनको जो कुछ सिखाया है तुमको अल्लाह ने, तो खाओ उनमें से जो पकड़ रखे वो तुम्हारे लिए, और लो नाम अल्लाह का इस पर, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पे जो शिकारी जानवर उन्होंने रखे हुए थे, जो शिकार पकड़ के लाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको भी तुम सुधारते हो, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया कि किस तरह से उनको लेके आना है। इसकी डिटेल जो है वो आप मेरे इंशाल्लाह जो मेरे लेक्चर्स होते हैं जिसमें मैंने तफसीर करवाती हूँ, उसमें आप जाके जरूर देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें, और खाना इन लोगों का जिन्हें दी गई है किताब हलाल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। और हलाल है पाक दामन औरतें मोमिनात में से, और पाक दामन औरतें उन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब तुम में से, जबकि अदा कर दो तुम उन्हें इनके महर निकाह में लाने के लिए, ना कि बदकारी करने के लिए, और ना कि ये कि छुपी आशनाई के लिए। और जो मुनकर हुआ ईमान का, तो यकीनन जाया हो गए उसके अमल, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये बात आती है कि अहले किताब का खाना जायज है, तो उलमा ये कहते हैं कि अहले किताब का खाना वो जायज है जो हमारे लिए भी हलाल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मुसलमान के घर में कोई हराम चीज है तो वो तो नहीं खाएंगे ना, इसी तरह से अहले किताब में भी जो हराम चीज है वो हम नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ज़बह किया और अगर उन्होंने हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया, मतलब खून नहीं निकाला सारा जब वो ज़बह कर रहे थे, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। और लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस कह दिया कि अहले किताब का खाना हलाल है तो वो खा सकते हैं। आयत नंबर 6 में हम वुजू के अहकामात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए तो धो लिया करो अपने मुंह और अपने हाथ कोनियों तक, और मसा कर लो अपने सरों का, और धो लिया करो अपने पैर को घुटनों तक, और अगर तुम हो हालत जनाबत में तो नहा कर पाक हो जाया करो, और अगर तुम हो बीमार या सफर में, या आया हो कोई तुम में से बैतुल खला से, या मुकारबत की हो तुमने औरतों से, फिर ना मिल सके तुमको पानी, तो तुम तयम्मुम कर लिया करो ऐसी मिट्टी से जो पाक है, बस मसा करो अपने मुंह का और अपने हाथ का, इससे और नहीं चाहता अल्लाह के मुब्तला करे तुमको किसी तंगी में, बल्कि चाहता है कि तुम्हें पाक करे और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। यहाँ पे देखिए दोनों चीजों का हुक्म है कि वुजू करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कैसे वुजू है, और उसके बाद तयम्मुम का भी जिक्र कर दिया कि अगर पानी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिला तो चलो जी नमाज से छुट्टी हो गई, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो फिर तयम्मुम करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, और याद करो एहसान अल्लाह के जो किए उसने तुम पर, और उसको अहद को वो के लिया था तुमसे कौल, जिसका जब कहा था तुमसे कि सुना हमने और कबूल किया हमने, डरो अल्लाह से, यकीनन अल्लाह वाकिफ है उन बातों से जो तुम्हारे दिलों में है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तकरार आपको इसमें मिलेगी कि बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपसे मुखातिब हैं, क्योंकि इससे पहली सूरत में हम ज्यादातर ये देख रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते थे या अय्युहन्नास के तमाम इंसानियत के लिए था, और यहाँ पे खास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, खड़े हो जाया करो अल्लाह के लिए गवाहियां देने की इंसाफ वाली, और ना आमादा करे तुमको दुश्मनी किसी कौम की, और डरते रहो अल्लाह से, यकीनन अल्लाह बखबर है इससे जो कुछ तुम करते हो। वादा फरमाया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए है मगफरत और अजर अजीम। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, वही लोग जहन्नम वाले हैं। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए इसके जहां जहां भी आता ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, छोटा सा अपना नाम नीचे लिख लिया करे, ताकि जब भी आप कुरान खोलेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो उसने किया है तुम पर। जब इरादा किया एक रोने के बढ़ाएं वो तुम पर अपना हाथ, तो रोक दिया उसने उनके हाथों को तुमसे, और डरते रहो अल्लाह से, और अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए मोमिनों को। देखिए कई दफा ऐसा होता है ना, हमें डर होता है कि फलां बंदा जो है वो हमसे इतना ताकतवर है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर हम हमें तो वो दबा लेगा या हम पे जुल्म करेगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत बात कही ना, अगर हमें अल्लाह पर भरोसा होगा ना तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे सफाई करने की जरूरत है, अल्लाह पे तवक्कल करने की जरूरत है। अल्लाह अपने वली को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बिला शुबा लिया था अल्लाह ने इकरार बनी इसराइल से, और मुकर्रर किए थे हमने उनमें 12 सरदार, और फरमाया अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम कैसे, अगर तुम कायम रखो नमाज और देते रहोगे ज़कात और ईमान रखोगे मेरे रसूलों पर, और मदद करते रहोगे इनकी, और कर्ज दोगे अल्लाह को कर्जे हसना। ये कौन सा कर्जे हसना? कि अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में खर्च करोगे, तो जरूर दूर कर दूंगा मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह, और जरूर दाखिल करूंगा मैं तुम्हें जन्नतों में जिसमें बह रही होंगी जिसके नीचे नहरें। फिर जिसने कुफर किया इसके बाद तुम में से, तो यकीनन भटक गया वो सीधी राह में से। और अब आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस इस वजह से कि तोड़ डाला उसने अपने अहद को, लानत की हमने उस पर, और कर दिया हमने उनके दिलों को सख्त, बदल देते हैं वो कलाम अल्लाह को उसके मकामात से, और बुला बैठते हैं एक हिस्सा इसमें से नसीहत की थी जिसकी उनको, और तुम हमेशा खबर पाते रहते हो खयानत की उनकी, सिवाय चंद एक के उनमें से, सो माफ कर दो उन्हें और दरगुजर करो, यकीनन अल्लाह पसंद करता है एहसान करने वालों को। और उन लोगों में से जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, लिया था हमने उनसे अहद, फिर फरामोश कर दिया उन्होंने एक हिस्सा इसका, नसीहत की थी जिसकी उनको, तो डाल दिया हमने उनके दरमियान बुग़्ज़ और कीना रोज़े क़यामत तक के लिए, और अनकरीब आगाह कर देगा उन्हें अल्लाह जो कुछ वो करते हैं। और ए अहले किताब, यकीनन आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल के खोल कर बयान करते हैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ इसमें से जो छुपाते थे तुम अपनी किताब में। क्योंकि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही बयान किया कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को छुपा देते थे। तो उस जमाने में जो तौरात थी वो आम बंदे के हाथ में नहीं थी, आम लोग उसको नहीं पढ़ सकते थे। उनके उलमा जैसे भी कहते थे वो उनको वही लगता था कि उस किताब में यही लिखा हुआ है। लेकिन आज हम कितने नसीब वाले हैं, हम कितने खुशकिस्मत है कि कुरान हर इंसान के हाथ में। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा आप देखिए कि हमें ये पता ही नहीं कि इस किताब में क्या लिखा है। हम दुनिया की हजारों किताबें पढ़ लेते हैं, हमारा बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखता तो हम स्कूल में उसको ABC सिखाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमने कितना बड़ा जुल्म किया अपनी किताब के साथ कि हमें अब तो हमारी लैंग्वेज में, कोई लैंग्वेज, उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में इसका तर्जुमा है, इसके बावजूद भी हम इस किताब को नहीं समझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने नाराज होंगे हमसे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अहले किताब, यकीनन आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल के खोल खोल कर बयान करते हैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ इसमें से जो छुपाते थे तुम किताब में, और दरगुजर करता है बहुत कुछ, बेशक आ चुकी तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और किताब मुबीन।
अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, दिखाता है इसके जरिए से अल्लाह उनको जो ताबे हुआ उसकी रजा के रास्ते सलामती के, और निकालते हैं उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ अपने हुक्म से, और चलाता है उनको सीधी राह पर। बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ही है मसीह इब्ने मरियम। कह दो कि किसका बस चलता है अल्लाह के आगे जरा भी, अगर वो इरादा कर ले हलाक कर डाले मसीह इब्ने मरियम को और उसकी माँ को और उसको जो कुछ जमीन में। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी मुश्किल आयात है ना, डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के आगे जरा भी किसका बस चलता है, अगर इरादा कर ले अल्लाह के हलाक कर दे मसीह इब्ने मरियम को, उसकी माँ को और उसको जो जमीन में है, सब के सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाक कर दे, तो अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमान और जमीन की, और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान पैदा करता है वो चाहता है जो, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हाँ यहूद और नसारा ने कि हम बेटे हैं अल्लाह के और उसके चहेते हैं। कह दो कि फिर क्यों अजाब देता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारे गुनाहों के सबब, नहीं बल्कि तुम बशर हो, इन्हीं में से हो जो उसने पैदा किया, बख्श दे वो जिसे चाहे और अजाब दे वो जिसे चाहे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के लिए आसमान की बादशाही और जमीन की, और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान, इसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ए अहले किताब, यकीनन आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल के खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए मुनक़ता रहने के बाद सिलसिला रसूलों के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं, क्योंकि हजरत ईसा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 600 साल का फर्क था, तो उससे पहले तो पे दर पे रसूल आ रहे थे, और एक एक रसूल आके अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के बारे में बता रहे थे। और देखिए हजरत मूसा अलैहि सलाम भी तो अपने वक्त के मुसलमानों पे रसूल थे, और जो हजरत ईसा थे वो अपने वक्त के जो लोग थे और उनके ऊपर जो मुसलमान थे रसूल थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दे रहे थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को रसूल नहीं मानते थे, वो उनको जैसे अपने वालिदात की जैसे इज्जत करते थे, इसी तरह से उनको एक बुजुर्ग समझ के उनकी इज्जत करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो हमें हजरत ईसा और हजरत मूसा के जो किस्से हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो लोग तो मुसलमान थे, इसके बावजूद उनमें कितनी खराबियां आ गई थी, कितनी बिदात उनके अंदर आ गई थी कि मुसलमानों तुम ऐसा ना करना कि अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो, जो अल्लाह ना करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना कहो तुम कि नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, सो यकीनन आ गया तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर, जब पैदा किया उसने तुम में पैगंबर और बनाया तुम्हें बादशाह और अनायत किया तुमको इतना कुछ के नहीं दिया किसी को अहले आलम में से। अब देखिए अहले किताब यहूदियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी फजीलत दी कि पूरे जहान पर उनको फजीलत दी थी। और आयत नंबर 21 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरी कौम दाखिल हो जो तुम अर्ज़ मुकद्दस में जिसे लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना फिर जाना अपनी पीठे मोड़कर, वरना पलटोगे नुकसान उठाने वालों में से। वो कहने लगे ए मूसा यकीनन वहां एक कौम है बहुत ताकतवर, और यकीनन हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इसमें जब तक कि ना निकल जाएं और वो वहां से, फिर अगर वो निकल जाए वहां से तो हम जरूर दाखिल हो जाएंगे। कहने लगे दो शख्स इनमें से जो डरते थे, और इनाम फरमाया था अल्लाह ने उन दोनों पर कि दाखिल हो जो इस पर हमला करके दरवाजे में से, फिर जब दाखिल हो जाओगे तुम इसमें तो बेशक अल्लाह तुम्हें गालिब कर देगा, और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। अब यहाँ पे क्या था कि वादी ती में जब ये लोग आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो किस्सा आपको याद है ना, कि फिरौन से निजात दिलाई थी और समंदर को दो हिस्से हो गए थे, हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गए और फिरौन उसमें डूब गया था। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी ती में पहुंचते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आता है कि इनको कहो कि ये अपनी अर्ज़ मुकद्दस की तरफ चले, फलस्तीन को उनको फतह करना था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिशारत भी सुना दी कि ये बस वहां पे जाएंगे तो इनको कामयाबी मिल जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा
तो क्योंकि आप देखें पीछे से ये लोग गुलाम थे, तो इतनी गुलामी में रहते रहते ना उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मूसा, हम तो वहां पे तो इतने बहादुर लोग हैं, इतने लंबे चौड़े उनके कद है, तो हमें बड़ा डर लगता है। तुम जाओ और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहो कि तुम्हें फतह दे, तो जब तुम्हें फतह मिल जाएगी तो हम उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हजरत मूसा जब वादी यतीम में आए थे तो लाखों का लश्कर उनके साथ था, और लाखों के लश्कर में से दो लोग, सिर्फ दो लोग ये कह रहे हैं कि ए लोगो, जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनकी बात मानो। आप देखें कि हजरत मूसा को कितना गुस्सा आया होगा उनपे, और वो बोले ए मूसा, यकीनन हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इसमें कभी भी, जब तक वो लोग वहां पे हैं। तो तू जा और तू और तुम्हारा रब फिर दोनों लड़ो उनसे, बेशक हम तो यही बैठे रहने वाले हैं। कहा उसने, ए मेरे रब, बेशक मैं नहीं इख्तियार रखता सिवाय अपने और अपने भाई के, सो तू जुदाई कर दे हमारे और इन लोगों के दरमियान जो नाफरमान है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने डिसाइडेड थे कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेसिकली उनके लिए बददुआ ये की कि ये लोग नहीं मानते अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तेरे और इनके दरमियान तू जुदाई डाल दे। फरमाया उसने, किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो बेशक वो है हराम कर दिया उन पर 40 बरस तक, वो 40 बरस तक वादी यतीम में घूमते रहे थे। और उसके बाद हजरत मूसा भी उन्हें उसी दौरान में फौत हो गए, और उसके बाद उन्होंने यूशे बिन नून की क़यादत में जाके फलस्तीन फतह किया था, क्योंकि जो बड़े लोग थे उस वक्त के वो मर चुके थे, और अब ये नए बच्चे जो पैदा हुए थे वो अब जवान हो गए थे। तो उन्होंने फिर जाके उनके साथ जंग की थी, और फिर वो फलस्तीन में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सरगर्दा फिरते रहेंगे जमीन में, तो ना अफसोस करना नाफरमान कौम पर। और सुना दो इनको किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, जो बिल्कुल हक है। जब पेश की दोनों ने एक न्याज, तो कबूल हो गया इन दोनों में से एक की न्याज, और ना कबूल हुई दूसरे की। तो कहा उसने कि यकीनन मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि दर हकीकत वो कबूल करता है अल्लाह परहेजगारों को। देखिए उस जमाने में क्या होता था कि जो अपनी कुर्बानी पेश करता था, दोनों के दरमियान में अगर कोई झगड़ा है, कोई ऐसा है, तो वो तरीका ये होता था कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेते थे, और वो जो पहाड़ के ऊपर रख लेते थे, और आसमान से एक बिजली आती थी जो जो ठीक होता था ना, जो हक पे होता था, उसकी कुर्बानी को उठा के ले जाती थी। तो उसे पता चल जाता था, एक फैसला हो जाता था कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो जो दो भाइयों के दरमियान जो फैसला करना था, तो जो एक भाई की कुर्बानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल किया और वो सच पे था, तो दूसरे भाई ने कहा गुस्से में आके कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और अब आयत नंबर 28 में कि अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो नहीं मैं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तेरी तरफ तुझको कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है तमाम जहानों का। यकीनन मैं चाहता हूँ कि तू समेट ले मेरे गुनाह को भी और अपने गुनाह को भी, फिर तू हो जाएगा अहले दोज़ख में से, और यही तेरी सजा है और जालिमों की यही सजा होती है। तो तरगीब दी उसको उसके नफ्स ने कि कत्ल किया उसने अपने भाई को, और उसने कत्ल कर दिया, फिर हो गया वो खसारा पाने वालों में से। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदने लगा जमीन को, ताकि उसे दिखाए कि कैसे छुपाए लाश को अपने भाई की। कहने लगा, हाय मेरी बदकिस्मती, क्या मैं इससे भी आजिज हूँ कि मैं हो सकता जैसे कि ये कौवा है कि छुपा देता लाश अपने भाई की। फिर वो हो गया पशेमान इसी वजह से कि लिख दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। अब देखिए दो चीजें हैं, एक कत्ल और एक फसाद। और आप देखिए आजकल जमीन में दुनिया में फसाद कैसे हो रहा है। हमारे इर्द के जो लोग दुनिया में फसाद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है, अब आप गौर से सुनिएगा कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। और जिसने जिंदगी बख्शी उसको, तो गोया जिंदगी दी उसने तमाम इंसानों को। और यकीनन आ चुके हैं उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ। फिर भी यकीनन बहुत से लोग इनमें से इसके बाद जमीन में बहुत ज्यादतियां करने वाले हैं। सिर्फ यही सजा है उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, और दौड़ते फिरते हैं जमीन में फसाद करने वालों को। अब गौर कीजिए कि फसाद का वर्ड किधर आया है, कि जमीन में जो फसाद करते हैं उनकी सजा क्या है, कि कत्ल कर दिए जाएं, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या काट दिए जाएं। फिर देखिए कत्ला का वर्ड आता है जो टुकड़े टुकड़े कर देना, कि काट दिए जाएं इनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिमतों से, और निकाल दिए जाए मुल्क से। ये इसलिए कि रसवाई है दुनिया में भी उनके लिए, और आखिरत में उनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा।
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं सिवाय वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली इससे बेशतर कि तुम काबू पाओ उन पर, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अगर कोई उससे पहले, कि अगर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले, पकड़ा जाएगा तो फिर तो उसको पता ही अब सजा मिली है, फिर तौबा का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसको एहसास हो जाता है इस बात का और वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वो लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पे देखिए जहाद का जो लफ्ज आता है ना, सबसे हम अब कहाँ पे, हम तो नहीं जहाद पे जा सकते ना, औरतें हैं, तो हमारा जहाद क्या है कि हमने अपने नफ्स से जहाद करना। अल्लाह सुब्हान तआला ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया है, दो हमें मुश्किल लगे लेकिन हमारे लिए उससे बड़ा जहाद नहीं होगा कि हम उस पर जम जाएं कि हमने अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पूरे करने हैं, तो हमने अपने अंदर से ये सारी चीजें जो बेसिकली देखिए, अगर हम झूठ की आदत है फॉर एग्जाम्पल, तो झूठ ना बोले ये जहाद है, चुगली ना लगाए ये जहाद है, किसी का हक ना मारे ये जहाद है, किसी का दिल ना तोड़े ये जहाद है। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला की राह में जो जहाद करने वाले हैं उनको फिर कितने बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ए वो लोगों जो ईमान लाए, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करते रहो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 36 के अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अगर ये कि उनके पास हो वो जो जमीन में है सब का सब, और इसी कदर उसके साथ ताकि फिदिया कर दें वो उस अजाब के बदले में जो क़यामत के रोज तो नहीं कबूल किया जाएगा उनसे, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं चाहेंगे वो कि निकल जाए आग से मगर वो नहीं निकल सकेंगे इससे, और उनके लिए अजाब है हमेशगी का। और चोर मर्द और चोर औरत काट दो हाथ उन दोनों के, सजा है उसकी जो उन्होंने कमाया इबरत के तौर पर अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जबरदस्त साहिब हिकमत है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 39 में फिर वो जिसने तौबा कर ली बाद अपने गुनाह के और इस्लाह कर ली तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है उसको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अब यहाँ पे क्या बात है कि जब अगर वो इवन पकड़ा जाता है और फिर वो तौबा कर लेता है ना, तो क्यामत के दिन जो उसको सजा मिलनी थी अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह वहां पे माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया में अगर जो उसने ऐसी हरकत की है तो उसकी सजा तो दुनिया में मिलेगी। आयत नंबर 40 क्या नहीं मालूम तुझे कि अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और जमीनों में, अजाब करे वो जिसको चाहे और बख्श दे जिसको चाहे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ए रसूल ना गमगीन करे तुमको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफर में, इन लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अपने मुंह से जबकि नहीं वो ईमान लाए, और इन लोगों में से जो यहूदी हैं कान लगाने वाले हैं झूठी बातों पर, जासूसी करते हैं उन दूसरे लोगों के लिए नहीं जो तुम्हारे पास आए, तहरीफ कर देते हैं कलाम में बाद इसके उसके मुकाम से बदल कर, कहते हैं अगर दिया जाए तुमको यही हुक्म तो उसको कबूल कर लेना, और अगर ना दिया जाए तो बचते रहना उससे, और जिसको चाहे अल्लाह के उसे फितने में डाल दे तो हरगिज नहीं तुम इख्तियार रखते इसके लिए अल्लाह के मुकाबले में जरा भी। यही वो लोग हैं कि नहीं चाहा अल्लाह ने कि पाक करे उनके दिलों को, और उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और उनके लिए आखिरत में अजाब है बहुत बड़ा। जासूसी करने वाले हैं झूठी बातों पर, बहुत खाने वाले हैं हराम को, तो अगर ये आए तुम्हारे पास तो फैसला कर देना उनके दरमियान या रूगर्दानी कर लेना इनसे, और अगर रूगर्दानी करो इनसे तो हरगिज नहीं वो बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा कुछ भी, और अगर तुम फैसला करो तो फैसला करना इनके दरमियान इंसाफ से, यकीनन अल्लाह महबूब रखता है इंसाफ करने वालों को। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं और कैसे वो तुमको मुनसिफ बनाएंगे जबकि उनके पास तौरात है जिसमें हुक्म है अल्लाह का, फिर भी वो मुंह मोड़ लेते हैं इसके बाद इससे, और नहीं है ये लोग ईमान वाले। आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं बेशक हमने नाजिल फरमाई तौरात जिसमें हदायत और रोशनी है, हुक्म देते थे इसी के मुताबिक अंबिया जो फरमाबरदार थे उन लोगों को जो यहूदी थे, और मशाइख और उलमा भी क्योंकि वो निगहबान मुकर्रर किए गए थे अल्लाह की किताब के और थे वो इस पर गवाह। सो मत डरना तुम उन लोगों से, डरते रहना मुझे से, और ना बेच देना मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर,
और जो ना हुक्म दे इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने तो यही लोग हैं जो काफिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और लिख दिया हमने उनके लिए इसमें कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, ये सब जख्मों का इसी तरह बदला है। बस जो माफ कर दे उसे तो वो कुफारा होगा उसके लिए, और जो ना हुक्म दे इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने तो यही लोग जालिम हैं। और भेजा हमने उसके नक्शे कदम पर ईसा इब्ने मरियम को तस्दीक करने वाला बनाकर, इसका जो था पहले से मौजूद तौरात में, और अनायत की हमने उसको अंजील जिसमें हदायत और नूर है, और तस्दीक करती है उसकी जो था पहले से मौजूद तौरात में, और हदायत और नसीहत परहेजगारों के लिए। और चाहिए कि हुक्म दिया करे अहले अंजील इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने उसमें, और जो ना हुक्म दे इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने तो यही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नाजिल की हमने तुम पर ये किताब हक के साथ, कौन सी किताब? कुरान पाक, जो तस्दीक करती है उसकी जो पहले से मौजूद किताबों में है, और निगहबान है उस पर, तो फैसला करो उसके दरमियान इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, ना पैरवी करना उनकी ख्वाहिशात की, इससे कि मुंह मोड़कर जो आ चुका तुम्हारे पास हक, हर एक के लिए मुकर्रर किया है हमने तुम में से एक दस्तूर और एक तरीका। अगर अल्लाह चाहता तो बना देता तुम सबको एक ही उम्मत, मगर ये कि आजमाइश करे वो तुम्हारी इसमें जो दिया है उसने तुमको, सो सबकत ले जाओ नेक कामों में, अल्लाह की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है सब के सबको। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें पूछेगा जो तुम इख्तलाफ करते थे, और ये कि फैसला करे उनके दरमियान इसी के मुताबिक जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, और ना पैरवी करना उनकी ख्वाहिशात की, और उनसे मुख्तात रहना कि ना बहका दे तुमको किसी हुक्म से जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने तुम पर। बस अगर ये मुंह मोड़ लें तो जान लो कि सिर्फ यही चाहता है अल्लाह कि मुसीबत नाजिल करे उन पर उनके बाज गुनाहों के सबब, और यकीनन अक्सर लोग उनमें से नाफरमान हैं। आयत नंबर 50, बस क्या फैसले जमाना जाहिलियत के ये चाहते हैं? हालांकि कौन बेहतर है अल्लाह से फैसला करने वाला इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना बनाओ दोस्त यहूद और नसारा को। देखिए कितनी दफा ये बात आ चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात हम पढ़ते हैं ना बार बार कि दोस्त ना बनाओ उनको, कि उनके दिली दोस्तियां ना करो, कि राज की बातें जो मुसलमानों की राज की बातें है ना वो उन तक ना पहुंच जाए। इनमें से बाज दोस्त हैं बाज एक दूसरे के, और जो कोई दोस्त बनाएगा उनको तुम में से तो यकीनन उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। तो तुम देखोगे इन लोगों को जिनके दिलों में नफाक का मर्ज है कि वो दौड़ दौड़ कर जाते हैं उनमें और कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं आ पड़े हम पर जमाने की गर्दिश, सो करीब है कि अल्लाह भेज दे फतह या कोई और अमर अपने पास से, तो फिर ये होकर रह जाएं इस पर कि जो कुछ ये छुपाया करते हैं अपने दिलों में पशेमान। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, अभी कितनी दफा हमने ये पढ़ा ना कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाना और उनसे दिली दोस्ती ना करना। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस बोलती हूँ, आप काफी फेमिलियर होंगे कि हमारी ही तरह के लोग होते हैं ना, जब हम ऐसे लोगों की ऐसी कम्युनिटी में होते हैं जहाँ पे यहूद और नसारा भी हैं और हम मुसलमान भी होते हैं, तो उनका सेंटेंस क्या होता है कि आई डोंट वांट टू मीट टू मेनी देसीज, मेरे हमारा तो मिलना जुलना अमेरिकन के साथ है। मेरे बच्चे जो है ना वो अमेरिकन स्कूल में ही क्योंकि पढ़ते हैं तो वहां पे उनकी दोस्तियां भी ऐसे, दे फील प्राउड। बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना नापसंद किया इन चीजों के लिए, और हम उस बात को ऐसे लुक डाउन कराने के लिए दूसरों को कि तुम तो देसी हो तो हमारा ऐसे मिलना जुलना जरा अपर क्लास में है। तो बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बताई कि ना ऐसे करो। और आयत नंबर 53 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहेंगे उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए कि क्या यही है वो लोग जो कस्में खाया करते थे अल्लाह की, सख्त सख्त अपनी कस्में, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, अकारत हो गए उनके अमाल, सो वो पड़ गए खसारे में। आयत नंबर 54 कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो कोई फिर जाएगा तुम में से अपने दीन से तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोग जिनको वो महबूब रखे, मेहरबान हो मोमिनों पर, सख्त काफरों पर, जहाद करे वो अल्लाह की राह में और ना डरे मलामत से किसी मलामत करने वाले की। ये फजल है अल्लाह का, वो देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश करने वाला
और सब जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 55 में, दर हकीकत तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह, उसका रसूल और जो ईमान वाले हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो कोई दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का और उन लोगों का जो ईमान लाए, तो बेशक जमात अल्लाह की वही गलबा पाने वाली है। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है तुम्हारे दीन का मजाक और खेल, इनमें से जिन्हें दी थी किताब तुम में से पहले, और डरते रहो अल्लाह ही से अगर हो तुम मोमिन। आयत नंबर 58, और जब तुम मनादी करते हो नमाज के लिए तो बना लेते हैं इसका मजाक और खेल, ये इसलिए कि ये लोग नहीं अकल रखते। कह दो ए अहले किताब, क्या जिद रखते हो तुम हमसे, सवाए इसके कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल हुआ हम पर और जो नाजिल हुआ हमसे पहले, और यकीनन तुम में से अक्सर नाफरमान है। आयत नंबर 60 के कह दो, बताओ मैं तुम्हें कौन बदतर है इससे कि जजा के लिहाज से अल्लाह के नजदीक वो है कि लानत की अल्लाह ने और गजबनाक हुआ वो जिन पर, और बना दिए उसने उनमें से बंदर और सुअर और बंदगी की जिन्होंने शैतान की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में और ज्यादा भटके हुए हैं सीधे राह से। आयत नंबर 61, और जब आते हैं वो तुम्हारे पास तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि आए थे वो कुफर लेकर और वो चले गए इसी के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। और तुम देखोगे कि अक्सर इनमें से जल्दी करते हैं गुनाह में और ज्यादती और हराम खाने में, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। क्यों नहीं मना करते उनको मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातें कहने से और उन्हें हराम खाने से, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। और कहा उन्होंने कि जो है यहूदी के अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, बंध गए उनके हाथ और लानत पड़ी उन पर बसबब ऐसा कहने के। असल ये है कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो खर्च करता है जिस पर चाहता है, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में, और डाल दी है हमने उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक। जब कभी जलाई उन्होंने आग लड़ाई की, बुझा दिया उसको अल्लाह ने, और दौड़ते फिरते हैं वो जमीन में फसाद के लिए, और अल्लाह नहीं दोस्त रखता फसाद करने वालों को। और अगर ये कि अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जरूर दूर कर देते हम उनमें से उनके गुनाहों को, और दाखिल करते हम उनको बागात में और नेमतों में। और अगर वो कायम करते तौरात, कायम करते तौरात मीन्स कि तौरात में जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, अगर वो कायम करते और जो कुछ नाजिल किया था उन पर इनके रब की तरफ से, तो रिस्क मिलता उनको उनके ऊपर से, उनके पांव के नीचे से, उनमें से एक जमात में आना रोहे, और अक्सर इनमें से बुरा है जो वो अमल करते हैं। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह पर जरा गौर कीजिए कि ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ना किया तुमने ऐसा तो ना पहुंचाया तुमने उसका पैगाम उनको। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह बचाए रखेगा तुमको उन लोगों से, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत दिया करता उन लोगों को जो इनकार करते हैं। कह दो ए अहले किताब, नहीं हो सकते तुम किसी भी राह पर जब तक कि ना तुम कायम करोगे तौरात और ना अंजील को, और जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में। तो ना अफसोस करो तुम इन लोगों पर जो इनकार करते हैं। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हुए और सितारा परस्त और निसारा, जो भी ईमान लाया अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और अमल करते रहे नेक, तो नहीं है उनको कोई खौफ और ना ही वो गमगीन होंगे। यकीनन हमने लिया था अहद बनी इसराइल से और भेजे उनकी तरफ रसूल, जब भी आया उनके पास कोई रसूल वो हुक्म लेकर, जो ना चाहा उनके दिलों ने, तो एक जमात ने तो उसको झुटला ही दिया और एक जमात ने उनको कत्ल कर दिया। और वो ख्याल करते हैं कि नहीं आ पड़ेगी कोई आफत, तो वो हो गए अंधे और वो हो गए बहरे, फिर तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ने उनकी, फिर अंधे हो गए और बहरे हो गए बहुत से उनमें से, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो करते हैं।
और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 72 में कि बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। हालांकि कहा था मसीह ने, ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। यकीनन जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ तो बेशक हराम कर दी अल्लाह ने उस पर बहिश्त और उसका ठिकाना दोज़ख है और नहीं होगा जालिमों का कोई भी मददगार। बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह तीन में से है तीसरा, हालांकि नहीं है कोई मबूद सवाए मबूद वाहिद के। और अगर नहीं वो बाज आएंगे इससे जो वो कहते हैं तो यकीनन पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया इनमें से अजाब तकलीफ देने वाला। तो क्यों नहीं तौबा करते वो अल्लाह के हजूर और माफी मांगते गुनाहों की उससे, क्योंकि अल्लाह तो बख्शने वाला और मेहरबान है। नहीं था मसीह इब्ने मरियम मगर एक रसूल, अलबत्ता गुजर चुके इससे पहले बहुत से रसूल, और उसकी माँ एक रासबाज औरत थी, खाते थे दोनों खाना। देखो किस तरह हमने खोलकर बयान किया इनके लिए आयात को, फिर देखो कहाँ से ये उल्टे जा रहे हैं। कह दो क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज की नहीं जिसको कुछ इख्तियार तुम्हारे नुकसान का और न ही तुम्हारे नफे का, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है। कह दो ए अहले किताब ना मुबालका करो। देखिए फिर वही बात आ गई कि ना मुबालका करो अपने दीन में ना हक, और ना पैरवी करो ख्वाहिशात की ऐसे लोगों की जो खुद भी गुमराह हो गए पहले ही और गुमराह कर गए अक्सरों को और भटक गए सीधी राह से। लानत की इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल में दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से और ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावज करने वाले थे, नहीं मना करते थे एक दूसरे को बुरे काम से। जो वो करते थे बिलाशुबा बुरा है जो कुछ वो किया करते थे। अब देखें कि इनका काम क्या था, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नाराज हो रहे हैं कि वो मना नहीं करते थे एक दूसरे को बुरे काम से। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई बुराई देखते हैं अपने घर में, अपनी औलादों में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, तो क्या हम मना करते हैं उनको? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनकी एग्जाम्पल दी कि वो ऐसे करते थे इसीलिए कि बुरा किया जो उन्होंने किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे हैं। तुम देखोगे इनमें से अक्सर को के दोस्ती रखते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। यकीनन बुरा है जो कुछ आगे भेजा है उन्होंने खुद अपनी जानों के लिए, कि ना खुश हुआ अल्लाह उनसे और अजाब में वो हमेशा मुब्तला रहेंगे। और अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो कुछ नाजिल किया गया इस पर तो ना बनाते उनको दोस्त, लेकिन अक्सर उनके नाफरमान है। और अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन तुम पाओगे सबसे ज्यादा सख्त इंसानों में अदावत में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए यहूदी और वो जिन्होंने शिर्क किया, और यकीनन तुम पाओगे इनसे करीब तर दोस्ती के लिहाज से उन लोगों के लिए जो ईमान लाए उनको जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें इबादत गुजार आलिम और मशाइख हैं और ये कि वो नहीं तकब्बर करते। अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो नसारा थे उन्होंने किस तरह से मदद की थी कि जब नजाशी के पास गए थे तो नजाशी के पास जब हिजरत करके गए थे तो उसने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहीरा थे एक आलिम थे उन्होंने उनको पहचान लिया था। तो यहाँ पे उस जमाने में इस तरह से हुआ था। लेकिन उसके बाद की तारीख में जब हम पढ़ते हैं कि क्रिश्चियंस ने किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म किए, किस तरह से उनकी खून बहाए थे, अल्लाह अकबर, तो ये उस जमाने की क्रिश्चियंस की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन लोगों ने किस तरह से मुसलमानों की मदद की थी। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से हमारा छठा पारा भी खत्म होता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ पढ़ा है हमारे अमल में आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अमल करना आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमजान की बरकतें हम पे नाजिल फरमाना, हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना और हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन पर कायम रखना और आखिरत में हमें बख्श देना। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।